वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन इन रोटेशनल डायनामिक चैप्टर नंबर 1, that is the centripetal acceleration. The centripetal acceleration is the important concept because in last lecture we discussed the circular motion and the uniform circular motion. अभी हम डिस्कस करेंगे उसके अभी एप्लीकेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हमें पता है, जब पार्टिकल इट इज मूविंग अराउंड द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने कंसेप्ट भी स्टडी किया था, दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है? तो पहले ये समझ के लीजिए, जब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ द सर्कल with a constant speed, so magnitude of v, that is a magnitude of v, it is always constant, means at this point, 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 the magnitude of v is constant, but the direction is always changing. Direction is always changing, and this direction is responsible to create the circular motion. इसलिए हम इस मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट में क्या होगी? चेंज होगी। दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेटेड मोशन, सो दैट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेटेड motion. Now we will see what is the centripetal acceleration. Centripetal acceleration, we know the centripetal acceleration, it is the acceleration which is given by the formula a is equal to v square upon r. The centripetal acceleration, it is the acceleration which is directed toward the center of circle, and we know the relation. So this is the equation for the centripetal acceleration in the uniform circular motion. So acceleration is equal to v square upon r. So if I know the equation, v is equal to what? It is the r into omega. If I will put this value in the equation, a is equal to, for v I am writing it as r square, it is omega square, r it will get cancelled, so a is equal to r omega square. This value is getting for the centripetal acceleration, and in vector notation, as it has a direction, in vector notation a is equal to minus r omega square. It is in vector notation. Now this negative sign indicate that this is the radius vector, this is the radius vector, and this is the acceleration. They are opposite in direction. We know the radius vector, it is given by, it is suppose center O, so radius vector is given by in this direction. So obviously this is the negative sign, तो negative sign होगी मतलब इसका direction क्या होगा? रिवर्स होगा. So what is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration, it is the acceleration of a particle. ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा. पार्टिकल का एक्सेलरेशन, it is acceleration of a particle which is along the radius, but directed toward the center of circle. Is called as a centripetal acceleration. It is what is the centripetal acceleration? Centripetal acceleration is the acceleration of the particle which is along the radius vector, but it is directed toward the center of circle. This word is important. It is directed towards the center of circle, and along radius vector. So we can define the centripetal acceleration. It is the acceleration of a particle performing a circular motion which is directed along the radius vector, but it is opposite to the radius vector, and it is directed toward the center of the circle. This is the centripetal acceleration. This centripetal acceleration, it is a very very important to provide the circular motion, because अगर centripetal acceleration नहीं रहेगा तो centripetal फोर्स नहीं रहेगा. और व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स वी विल सी. और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो आपका जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा. दिस इज द क्लियर. अभी यहाँ पे मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो मिल गया, ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. इफ आई विल टेक that is force is equal to, we know the relation, it is a mass into
acceleration. Force is equal to mass into acceleration, and this is the force. Mass is m. Acceleration, we know the formula, that is the a r m is r omega square, or we can put the value a is equal to v square by r. So it is v square by r, or again I can put the value of, if I will take this v upon r, v means I can write this m v into v upon r, and this v upon r it can be written as omega. So this is m v omega. This is the relation for the force, and this force is what? It is the centripetal force. मतलब a force क्या रहेगा? Centripetal force रहेगा. Now what is the force? The force, it is the force which is created due to the acceleration. अभी ये force रहेगा, लेकिन वो create किसकी वजह से होगा? Centripetal acceleration की वजह से होगा, और इस centripetal acceleration की वजह से आपको एक force मिलेगा, that is in terms of magnitude, and this F is equal to mr omega square is equal to mv square upon r is equal to mvw. इसका इक्वेशन मतलब सिंपल इक्वेशन है. We know the equation for the force. Force is equal to mass into acceleration, और दिस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, और यू कैन पुट दिस r ओमेगा स्क्वायर. सो m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू m v w. दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा. अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगे, वी विल सी दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्लीज नोट डाउन दिस. Now let us see what is the centripetal force. अभी centripetal force तो समझ में आए कि centripetal force it is the force acting on a particle पे act होगा, और ये force act होगा particle पे, लेकिन वो particle क्या perform होनी चाहिए? Circular motion में, and which is directed toward the center of a circle is called as a centripetal force. It is given by the formula F is equal to mr omega square. So the different forms of the forces already we discussed this. Abhi centripetal force, it is the force acting on a particle performing a circular motion which is directed toward the center of circle, and it is along the radius. It is along the radius and it is directed toward the center of circle is called as a centripetal force. Now there are some characteristics for the centripetal force. Centripetal force is a real force. We can find the value of the centripetal force by using the formula. This force is necessary always if the circular motion is there of any object. Means keep in the mind, दिमाग में याद रखो, जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट रहेगा ही रहेगा. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज नो एग्जिस्ट द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन आ गया, आपका वर्ड सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आ गया, तो दिमाग में रखिए कि देयर इज द centripetal force exists, and because of this centripetal force we are getting particle performing in circular motion. So it is necessary for performing the circular motion. Its direction is different at different points. मतलब जब सर्कुलर मोशन पार्टिकल पे मूव करेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी एट द डिफरेंट पॉइंट, सो दैट द फोर्स इज आल्सो हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन एट द डिफरेंट पॉइंट. It is along the, we know it is along the radius and it is directed toward the center of circle, and even it is having the acceleration, but it does not do any work. This is the important. It does not do any work. Centripetal force does not do any work. So these are the some characteristics for the centripetal force. अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेके हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज कार इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. कार इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. जो उसका फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ये प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कार जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करेगी. अभी इसके एप्लीकेशन हम डिटेल्स में जानकारी इस चैप्टर में करके लेने वाले, सो दैट विल सी इन द
आफ्टर सम टाइम। अभी सिर्फ याद रखो, अगर कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही तो वहां पे सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म हो रहा है। अभी मैंने बोल दिया है कि सर्कुलर मोशन होगी मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देयर शुड बी, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स किस में रहेगा, टायर, जो कार का टायर रहेगा और जो रोड रहेगा उसमें जो फ्रिक्शन रहेगा वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसा फैन रिवॉल्व हो रहा है, अभी फैन भी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है। सो जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं इस उस फैन को, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है वो फोर्स, एंड दैट विल बी बाउंड टू मूव दैट ब्लेड्स इन अ सर्कुलर मोशन। उसके बाद जब ये मून around the earth it is revolving, जब moon around the earth it is revolving, then there exists one force, and that force we are saying it is a gravitational force. So because of this gravitational force the moon will perform the circular motion. जब हम सैटेलाइट कुछ कोई लॉन्च कर रहे हैं और वो अर्थ के अराउंड मूव हो रहा है, so that वो मूव होने के लिए जो पाथ वो ऑर्बिट जो मूव हो जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट मूव हो जाएगा। उसके बाद और बहुत एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के वन एंड में हमने एक स्टोन टाइड किया है एंड वन एंड इज फिक्स्ड एट इन आवर हैंड, एंड इफ वी आर परफॉर्मिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, so there exists the one tension and that tension will create the centripetal force, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल करेगा सर्कुलर मोशन को। तो ये एग्जांपल जब हम समझ के ले रहे हैं उसके बाद आपको एक ही माइंड में आना चाहिए, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी वहां पे सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट होगी, नहीं तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं रहेगी। सो सर्कुलर मोशन है इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बिकॉज दे आर रिलेट टू ईच अदर्स। सो दिमाग में अभी याद रखिए पूरा कंफर्म, मतलब उसमें कुछ डाउट नहीं है कि सर्कुलर मोशन आ गई तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड इट इज ऑलवेज its direction is opposite to the radius vectors, and it is directed toward the center of the circle, and these are some important points which are related to the centripetal force. Now next we will see what is the centrifugal acceleration. It is a centrifugal acceleration and centrifugal force. Centrifugal force we will write. So centrifugal force is what? It is the pseudo force. It is the pseudo force. Now we know the Newton's second law. It is that Newton's second law is what? It is F is equal to mass into acceleration. और जो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करते हैं वो न्यूटन का सेकंड लॉ किसके लिए होगा? इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एग्जिस्ट होगा। इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एग्जिस्ट होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट? कुछ तो एक रिलेटिव पोजीशन रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और उस अर्थ की रिस्पेक्टिव पोजीशन में वो पोजीशन फिक्स रहेगी, तभी हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बट दिस न्यूटन सेकंड लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो दैट फॉर नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस we are considering the one force, and that force is called as a centrifugal force. So centrifugal force, it is a pseudo force. This centrifugal force, a pseudo force means it is an imaginary force, and it is directed away from the center of circle, so a force रहेगा, वो force this is away from the center of circle, but it is the pseudo force, remember this. Now we can give the example for the centrifugal force, just like as a suppose एक बकेट है, बकेट में हमने वाटर फिल किया है सम पार्ट, और वो बकेट हम मूव कर रहे हैं इन अ वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। अभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में परफॉर्म तो कर रहा है, किसकी वजह से? जो आपका हैंड है वो प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो बकेट उसके साथ मूव हो रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल एक्चुअली वाटर है, तो वाटर बकेट के बाहर आना चाहिए, लेकिन बाहर आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? सो दैट वन फोर्स विल बी एग्जिस्ट, और ये जो फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है उस वेट को, और बैलेंस करने की वजह से वो वाटर रहेगा, वो वाटर बकेट में रहेगा।
so that water as well as this bucket is moving in a vertical circular motion. मतलब one force will be responsible, और वो force क्या करेगा, it is away from the center of circle, तो वो weight को balance कर रहा है, किसके, water के weight को, so that water will not fall out, so that there is a balance of the weight and the one force, that is the centripetal force. And this is the example of the centrifugal force. This is a very simple example. We can take the another example. We can take अभी इसमें हम जो मतलब कितना फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं so that water will not fall down, we are not able to find out. By observation you can take or you can move fast and fast and fast, but वो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, so it is a pseudo force. एक सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप बस से ट्रैवल करते रहेंगे कॉलेज को आते समय डेली, या अगर सपोज बस से हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग बाय द बस, तो बस पे सपोज बस को अभी 12 क्लास 11 क्लास के बच्चे उनको सिटिंग नहीं मिलती है क्योंकि क्राउडी रहते हैं बस, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्रैवलिंग जस्ट बाय स्टैंडिंग. अभी आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम बस से जा रहे हैं और वी आर इन द स्टैंडिंग, और बस इज इन फास्ट मोशन, बस की स्पीड जो ज्यादा है, तो थोड़ी देर एक अचानक क्या हो गया, ड्राइवर ने उसको स्पीड को ब्रेक लगा दिया, मतलब ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा दिया. सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू आर इन द स्टैंडिंग, यू आर आपने किसी को तो पकड़ के रखा है हैंड को, और बस जा रही है, फास्ट बस है, स्पीड ज्यादा है, और ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगा लिया है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा. हर एक बच्चे है वो बता सकते हैं, और दे मे एक्सपीरियंस दिस एक्सपीरियंस. क्या होगा, आप फॉल डाउन हो गए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अभी ड्राइवर कितना ब्रेक लगाने के बाद मैं कितना गिर जाऊंगा ये बता सकता हूं क्या मैं, क्या आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते. सो दिस इज द वन फोर्स एंड दैट फोर्स इज व्हाट, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स. सो दिस इज कॉल्ड एज इट इज द pseudo force. So these are some examples for the centrifugal force that you can consider. Now its direction is away from the center of circle, it is the pseudo force. So these are the characteristics, and this will be exist for the non-frame of the reference. Centrifugal force will exist for the non-frame of the reference. Please note down. इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू हमें इन वेक्टर नोटेशन इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इट इज माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एफ सी एफ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इट इज प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट फोर्स which are related to the circular motion. So please note down this. अभी uniform circular motion, we learn circular motion, we learn uniform circular motion, centripetal acceleration, centrifugal force, centrifugal acceleration, centripetal force, centrifugal force. So already we clear all the concept. Now let us see what are the different applications of the uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में. पहला एक एप्लीकेशन है, अगर एक व्हीकल है तो व्हीकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेकेंड एप्लीकेशन है वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपने देखा होगा आप मौत का कुआं, मालूम है सबको मौत का कुआं. तो मौत का कुआं में जब राइडर वो राइड करता है टू व्हीलर, इट इज मोटरसाइकिल और कार, so why it is not falling down. So that is the application of the uniform circular motion. तो वो भी हम डिस्कस करने वाले इस सेशन में. और थर्ड जो एप्लीकेशन है, जब हम कर्व रोड से जाएंगे तो वहाँ पे जो कर्व रोड है, जो आउटर एज है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, वो क्यों होता है. So these are the application of the uniform circular motion. So let us see one by one. These are the applications for the uniform circular motion. So now we'll concentrate toward the first application, vehicle along a horizontal circular track. Horizontal circular track
मतलब ये आपका ट्रैक रहेगा, और ये आपकी vehicle रहेगी, and this vehicle is moving in a circular on a circular track. How it is moving on a circular tracks, we will see what are the different types of the force acting on these vehicles. So when the vehicle is moving along a circular path on a horizontal circular track, so there are the number of forces acting. Suppose see the center of that circular path here, and this is the vehicle is moving. So obviously this vehicle is having the one force, that is the weight, and it is directed in downward direction, weight. Another force will be created, so that there is the one N, that is the normal reaction, which is vertically upward direction, and another force is there, that is the force between this tire and the road. This is the road and this is the tire. So the force between tire and the road, this force is responsible, one force is there, and that force is, it is along this direction, and that is called as a static force, or it is a static frictional force. So there are the three forces are acting on these vehicles. So the first one is weight mg directed weight mg directed in downward direction. Second, normal reaction N, this is the mg, this is the N, directed in upward direction, and static frictional force, which is directed towards the center of circle, अभी यहाँ पे जब व्हीकल आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ट्रैक कर रहा है, तो वहां पे थ्री डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. कौन कौन से? एक तो उसका वेट रहेगा, ऑब्वियसली इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट एक डायरेक्ट कर रहा है, और अर्थ की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, सो दैट आई एम स्टैंडिंग और आई एम बैलेंसिंग ऑन द अर्थ. इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टिंग एंड वेट इज नॉट डायरेक्टिंग, सो आई एम नॉट एबल टू स्टैंड देयर. Same is happening on the moon. So we are in the moon, we are not able to stand, or we are not able to balance, so that normal reaction and our weight, it is not the balancing, so we are jumping there. So any body, any object is there on the earth surface, so it has the one weight is directed downwards, and normal direction which is opposite to that mass, opposite to the, or it is perpendicular to the surface. So एक व्हीकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो तीन वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द mg विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. उसके बाद नॉर्मल डायरेक्शन आएगी, क्या होगी? वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, अपर डायरेक्शन में होगी. और एक फोर्स एग्जिस्ट होगा. फोर्स किसके बीच में रहेगा? इट इज अ फोर्स बिटवीन the tire and the road, and that is called as a frictional force. It is called as static frictional force because the road is not uniform. Static is friction, the coefficient of friction is changing continuously, so the force value is changing continuously, depends on the vehicle is moving along the surface. मतलब क्योंकि सरफेस तो यहाँ पे स्मूथ है, उसके बाद थोड़ा वहां पे रफ है, उसके बाद थोड़ा रफ है, तो रोड तो स्मूथ नहीं होगा पूरे और यूनिफॉर्म नहीं होगा. रोड इज द नॉन यूनिफॉर्म, सो दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे फिगर आपने ड्रॉ किया, फिगर आपने समझ के लिए यहाँ पे, तो आपका जो वेट है वो वेट बैलेंस किसको कर रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन को. सो कैन आई राइट दिस? n इज इक्वल टू mg. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है. ऑलरेडी वी नो if the object or if any vehicle is moving in a circular path, so there exists the centripetal force. और ये frictional force यहाँ पे, this is very important, frictional force वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपका जो व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है. सो कैन आई राइट दिस F इज इक्वल टू, इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू, इट इज mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का हमें फॉर्मूला मालूम है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r.
If I will divide this equation, this is equation 1 and this is equation 2. So Fs upon n, Fs upon n equal to mv square upon r upon mg. So m get cancelled, so it is v square upon rg. This equation I am getting, and I know the static force is given by the equation Fs is equal to mu into n, where the mu is the coefficient of friction. It depends on the road surface, and this Fs upon n, so Fs upon n, so Fs upon n is equal to mu. So can I write this? Mu is equal to v square upon rg. So v square is equal to mu rg. So v is equal to, or I will write here, v is equal to square root of mu rg. This is the important equation I am getting. So क्योंकि ये जो म्यू है, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू कुछ तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि रोड सरफेस तो कांस्टेंट है, और रोड सरफेस कांस्टेंट होने की वजह से म्यू की जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, तो इसकी वैल्यू कुछ तो मैक्सिमम होगी, और ये अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैं आई विल टेक दिस वी मैक्स इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू आर इंटू जी. मतलब क्योंकि आर तो हम चेंज नहीं कर सकते, आर क्या है, इट इज अ रेडियस, जी इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे पता है, सो उतनी मैक्सिमम स्पीड से मैं उस सर्कुलर पाथ से मूव कर सकता हूं, और दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी प्रिवेंट फ्रॉम द व्हीकल फ्रॉम स्लिपिंग और स्किडिंग. क्योंकि इतना फोर्स की वजह से, इतने स्पीड, अगर स्पीड मैंने इतनी रख दी, कितनी स्पीड रहेगी, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू मैक्स इंटू आर जी. आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू मैक्स इसकी कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो उस मैक्सिमम स्पीड से हम सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर सकते. उससे ज्यादा अगर स्पीड हमने बढ़ा दिया तो वी आर फॉलिंग डाउन, दैट व्हीकल इज स्लिपिंग और व्हीकल इज द skidding there. So this is the important concept of the uniform circular motion, and the very simple. I hope that everyone is understood very clearly. Simple है बच्चों. देखो यहाँ पे एक अगर व्हीकल है, व्हीकल इट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो 3 फोर्स वहां पे इक्वल हो रहे, 3 फोर्स वहां पे एग्जिस्ट हो रहे. एक होगा उसका वेट mg, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा होगा फ्रिक्शनल फोर्स. ये तो वेट बैलेंस कर रहा है किसको, नॉर्मल रिएक्शन को, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो बिटवीन द रोड एंड टायर, वो क्या कर रहा है वहां पे, प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट दिस व्हीकल इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. अभी ये mg n बैलेंस कर रहा है, मतलब ये इक्वल रहेंगे, तो इसके लिए वो व्हीकल क्या रहेगा, रोड के ऊपर स्टेबल बैलेंस कर रहा है. सो mg इज इक्वल टू n, we are getting equation n, and obviously this Fs is the centripetal force. So Fs is equal to centripetal force, that is equal to mv square upon r, equation 2. If you divide this equation 2 by 1, so we are getting Fs upon n is equal to mv square upon r, mg mm get cancelled, v square upon rg. But this is the static force, Fs is the static force, and it depends on the, we have the formula, that is a normal reaction and the coefficient of friction, so mu into n. So Fs upon n is equal to mu. So for this Fs upon n, we are writing the mu is equal to v square upon rg. So v square is equal to mu rg, v is equal to square root of mu rg. This is the speed we can keep for the vehicle, so that vehicle is moving along the circular path. But the coefficient of friction has the particular value, it is having the maximum value. So if we put this maximum value mu max, then we can keep the maximum speed, that speed of the vehicle, so that vehicle is moving along the horizontal circular path. If we increase the speed, if we increase the speed, वहाँ पे आपकी जो व्हीकल है वो स्लिप हो सकती है, स्कीड हो सकती है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द व्हीकल along the horizontal circular track. Please note down this. The next application for the uniform circular motion, interesting, it is the mouth का कुआ. सबको पता है, सबने देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आप ये साइंस स्टडी करने के बाद जाके देखिए, जब आपकी यात्रा रहेगी आपके गांव में, तो डेफिनेटली मौत का कुआं एक रहता ही है, जहाँ पे बहुत सी भीड़ रहती है, और वी आर वेरी मतलब उत्साह से देखते हैं कि हाउ ही इज मूविंग ऑन दैट कुआ, वी कैन से इट इज कॉल्ड एज अ मौत का कुआ. लेकिन इसके पीछे एक साइंस है, तो वो साइंस हम जान के लेने वाले डिटेल्स में. और डेफिनेटली ये वीडियो आप देखने के बाद
आप डेफिनेटली मौत का कुआं जाके देखेंगे एक बार, और उसके पीछे का जो साइंस है वो आप लर्न करेंगे। सो वी विल सी वेल ऑफ डेथ और इट इज़ अ वॉल। आपने यहाँ पे देखा कि दिस इज जस्ट लाइक ऐसा मतलब वेल जो बोलते हैं ना, कुआं बोलते हैं, तो उसकी तरह ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसा सपोज यहाँ पे एक व्हीकल है, वो पर्सन उसके साथ रहेगा, एक टू व्हीलर मोटरसाइकिल रहेगी या कार रहेगी। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन है तो वो सर्कल मतलब पहले वो क्या करेगा, पहले ट्रैक पे आएगा, फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा के फिर स्पीड बढ़ा के कंटिन्यूसली वो बढ़ा के फिर ऐसा नीचे से ऊपर तक आएगा और घूमते रहेगा वो। और हम देख रहे हैं कि वो गिर नहीं सकता, क्योंकि वो वर्टिकल वॉल, ये वॉल वर्टिकल रह गया अभी, और ये वॉल के ऊपर वो कंटिन्यूसली रोल कर रहा है, मूव कर रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द साइंस वी आर स्टडिंग हियर। अगर यहाँ पे व्हीकल है सपोज, तो इस टाइम पे वहाँ पे तीन फोर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। कौन कौन सी हो रहे? डेफिनेटली एक वेट रहेगा mg, उसके बाद इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा बिटवीन द टायर एंड दिस द wall, and that frictional force is in the direction, and this is suppose fs। और इसके बाद इसको नॉर्मल डायरेक्शन, क्योंकि व्हीकल तो इस साइड में, सपोज ये वॉल है तो व्हीकल तो इस साइड में, तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसी रहेगी, तो दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। और एक सर्कुलर रेडियस रहेगा, दिस इज द रेडियस r। तो यहाँ पे तीन फोर्स एग्जिस्ट हो रहे, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो रही है देखो, वेट तो डायरेक्टेड रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो डायरेक्टेड अपवर्ड कर रहा है, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अगेन। और यहाँ पे द फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड। उसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट हो रही, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन फोर्स एग्जिस्ट हो रही है। द फोर्स mg, द वेट mg, आई विल राइट वेट mg डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, आई विल राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद fs, इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और थर्ड इट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अभी ये जो फोर्स है वो फोर्स आपको रिस्पॉन्सिबल रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो ऑब्वियसली दिस वेट इज डायरेक्टेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शनल, सो fs इज इक्वल टू mg। और नॉर्मल रिएक्शन ए जो रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट दिस इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज नथिंग बट द n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एंड ऑब्वियसली वी नो this fs, it should be less than equal to mu into normal reaction। if we put the values of this, fs is equal to, now in this case अगर static frictional ज़्यादा हो जाएगा as compared to mu into n, mu is the coefficient of friction, तो आपका व्हीकल फॉल डाउन हो सकता है। सो fs स्टैटिक फ्रिक्शन वो इक्वल टू इंटू म्यू इंटू एन रहना चाहिए, तभी आपका जो व्हीकल है वो बैलेंस कर सकता है और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके सर्कुलर मोशन में प्रोवाइड करेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ यू पुट द वैल्यूज, fs इज नथिंग बट द mg इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज लेस देन इक्वल टू, एंड द mu n is mv square upon r, this m get cancelled, so I have to find out the expression for this v square, it should be greater than equal to r g upon mu, so v is square root of rg upon mu। this is the important relation I am getting, so that this is the speed, so that this vehicle is moving in a जो कुआं बोलते हैं वो मूव हो सकता है। अगर स्पीड उससे कम होगी तो वो फॉल डाउन करेगा। तो उस स्पीड से r तो कांस्टेंट है, g तो कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शन होगा इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द म्यू। तो उस स्पीड की वजह से अगर स्पीड इससे ज़्यादा होगी तभी आप वो व्हीकल मूव हो जाएगा, अगर स्पीड उससे कम होगी तो आपका व्हीकल फॉल डाउन होगा। तो आपने देखा होगा, तो व्हीकल इज वेरी फास्ट मूविंग इन द वेल, और उसको बोलते हैं हम
अलोंग द वॉल, तो वॉल के साथ तो व्हीकल फास्ट स्पीड में मूव होती है। और ये मतलब उनको जजमेंट रहता है, वो उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की हुई रहती है, सो दैट वो जो वॉल का फ्रिक्शन रहेगा, उसके बाद बाइक की स्पीड रहेगी, तो स्पीड की वजह से वो स्पीड इनिशियली वो स्टार्टिंग की स्लो क्योंकि लास्ट में जो इनिशियली जो सरफेस रहेगा अलोंग द अर्थ सरफेस, जो ग्राउंड लेवल रहेगा, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी वहां पे कम रहनी चाहिए, और जैसे वो ऊपर आती जाएगा तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी विल मूव। और वेलोसिटी जब वो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, और इससे अगर स्पीड हमने बढ़ा दी तो आपका व्हीकल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, और आपका व्हीकल वहां पे मूव होता रहेगा। सो दिस इज द सिंपल साइंस बिहाइंड दिस मौत का कुआं। तो डेफिनेटली आप ये सब स्टडी करने के बाद एक बार जाके देखिए, और देखने का सिर्फ देखने का नहीं है, वहाँ पे साइंस अप्लाई करने का है। और आप जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए कि ऐसा ही हो रहा है क्या, और इस ऑब्जर्वेशन के साथ आप देखिए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और डेफिनेटली द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिनाज दैट वी आर ऑब्जर्विंग अराउंड अस। और जब ये स्टडी करते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग स्टडी करते रहेंगे, तो फिजिक्स आपको बहुत ही सिंपल जाएगा। सो आई एम ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ माई, so that everyone will get the interest in the physics, and definitely I will hope that everyone will get the interest in the physics, so that physics made very simple। और physics बहुत ही simple है, और हम इसको simple करके रखेंगे, और हम physics में out of marks लाने का try definitely करेंगे in NEET, JEE, CET और बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम देखने वाले the next application of the uniform circular motion, that is the banking of road। important concept है, आपने देखा होगा बहुत, नहीं तो आप बाहर जाके आप देख ही सकते हैं कि अगर कर रोड आ गया तो वहाँ पे आउटर जो सरफेस है वो थोड़ा ऊपर रहता है, इनर सरफेस वो थोड़ा लोअर रहता है एज पर द हाइट। सो वी आर हैविंग द वन इंक्लिनेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। सो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या रहेगा, बैंकिंग ऑफ रोड क्या रहेगा, और कोनिकल पेंडुलम, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में लर्न करने वाले। सो वीडियो देखते समय आप स्टार्टिंग सेशन लेसन फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ ऐसा एक एक वीडियो मत देखिए, सो दैट यू विल गेट द इंटरेस्ट। नहीं तो क्या हो जाएगा, अभी लास्ट लेसन में क्या पढ़ाया था कि, क्योंकि दिस आर द रिलेट टू ईच अदर्स। ये फिजिक्स ऐसा ही है कि जो एक एक लेसन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मतलब आप पढ़ाई के लिए बैठ गए तो आप लेसन 1 ओपन कीजिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे नोट्स डाउन कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, सो यू कैन गिव मी द कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन व्हाट्सएप मी। आई एम हियर फॉर योर एनी डाउट और एनी क्वेरी सॉल्यूशन। सो डोंट मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ आपको डिफिकल्ट है, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा समझने की कुछ भी जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जा रहे हैं अभी, तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा, एंड आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो लाइक हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे कल की वीडियो लेक्चर में।